My sincerest, warm greetings to all of you who are joining us this evening for our Instagram live session. It is such a great pleasure to see all of you here once again to discuss about life, to discuss about the process of living a better life, to discuss about enhancing the quality and the experiencing of how we live our lives. So I want to thank you all very much for being a part of our Instagram community and for joining us this evening for our Instagram live session. I want to thank you very much, Monica, Radhe Radhe, Manali. Thank you for joining us. Jai Shri Advani, Viren Manawat, thank you. Kalpesh, Jalandhar, Aarti, Abhi, thank you so much for being with us. Vishnoi, OTP Vishnoi, thank you for joining. Pooja, Akshana, Kaniksha, Vinayak Datta, Shopper Stop 86, Minesh Agarwal. I'm so grateful that you've taken your time out to be with us here for this special Instagram live session. Bhavik Patel, thank you for joining us this evening as well. Panda Misha, thank you. Sham Gopal Sharaf, hi. Very, very happy that you are with us here this evening. Shashank, Hare Krishna. I'm Manas, Hare Krishna. Neha Vik Singh, thank you again for being with us. One of the most important aspects of life that helps us to keep going is hope. Hope is something that helps us to push through those difficult times, those tough times, those turbulent times. उम्मीद एक ऐसी चीज है जो हमें मुश्किल वक्त के समय भी अपने सफर पर बरकरार रखती है. Isn't it hope that makes a guy wait for a girl to say a yes? क्या वो उम्मीद नहीं है जिसकी वजह से वो बंदा रुकता है कि एक दिन बंदी हाँ बोल देगी? He waits for her to respond and say a yes, isn't it? I'm sure some of you guys who want a particular girl or some of you girls who want a particular boy will vouch for this fact that it's hope that they will say a yes. Of course आजकल ना ये love language बदल गई है, you know. पहले ज़माने में लोग थोड़ी spiritual language use किया करते थे. Like the guy would say to the girl, I am the body, you are my soul. मैं शरीर हूँ तो मेरी आत्मा है. और आजकल ना लैंग्वेज बदल गई है. लड़का कहता है मैं स्मार्टफोन हूँ तो मेरी सिम कार्ड है. The problem is the girl replies back by saying मेरी बस एक ही प्रार्थना है, एक ही दुआ है खुदा से कि तेरा फ़ोन ना ड्यूअल सिम कार्ड वाला फ़ोन नहीं हो. That you're not a dual SIM card phone flirting with somebody else. But वो उम्मीद ही तो है. Patiently प्रयास करने में मजबूर कर देती है. Isn't it hope, guys, that a CA student keeps working hard to clear his or her CA exams? कभी कभी ना पिताजी और बेटा साथ में ही CA पास हो जाते हैं और इसीलिए कभी कभी हम कहते हैं CA stands for come again, आते रही है. How many times that guy fails, but it is that hope. वो उम्मीद ही तो है जो उसे बरकरार रखती है. कोशिश करते रहेंगे, हो सकता है एक दिन पास हो जाए. वो उम्मीद ही तो है जो एक इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराती है. द इन्वेस्टर कीप्स वेटिंग. When will the stock market prices go down? शेयर्स के भाव कब उतर जाएंगे तब मैं खरीद लूं, और शेयर के भाव कब ऊपर चढ़ जाएंगे तब मैं बेच दूं. उम्मीद से रुका रहता है कि भाव गिर जाए तो खरीद लूं, भाव बढ़ जाए तो बेच दूं. Isn't it hope that makes a religious person, a spiritual practitioner, patiently practice their spiritual practice, their sadhana, waiting for that experience? उस एहसास के लिए, उस अनुभव के लिए लगे रहते हैं वो. दोस्तों, उम्मीद एक ऐसी चीज है जिस पर सारी दुनिया टिकी हुई है और सारी दुनिया चल रही है. किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक परिंदा है. इंसान ख्वाहिशों से बंधा एक परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल और उम्मीदों से ही जिंदा है. वही उम्मीदें इंसान को घायल कर देती है. जब वो बंदी बंदे को मना कर देती है, उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती, घायल हो जाता है. जब बंदी को पता लगता है कि इसका स्मार्टफोन ड्यूअल सिम कार्ड वाला है और भी कोई है उसके लाइफ में,
बंदी घायल हो जाती है। सीए के एग्जाम में 20 बार फेल होने के बाद जब उम्मीद टूट जाती है तो घायल हो जाता है। जब शेयर मार्केट में शेयर बेचना चाहता है, रुकता है, भाव नीचे उतर जाएंगे और अचानक भाव चढ़ जाते हैं, अब खरीद नहीं पाता, घायल हो जाता है। सोचता है भाव बढ़ जाएंगे फिर बेच दूंगा, और रुका रहता है और अचानक शेयर मार्केट गिर जाता है, फिर घायल हो जाता है। उम्मीदों से ही घायल और उम्मीदों से ही जिंदा है। दोस्तों, उम्मीद ही तो व्यक्ति को, इंसान को जिंदगी में बरकरार रखती है, अपने सफ़र में आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा देती रहती है। एंड देयरफॉर होप इज सच अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। और इस कोरोना वायरस के दौरान भी हमको उम्मीद रखनी चाहिए कि यह दौर बीत जाएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब और तलत महमूद साहब की आवाज़ में गाया हुआ एक बहुत सुंदर गाना है, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। After the night's darkness, the light of the day will certainly come. Be patient to wait for the light of the day, and that is where hope is needed. उस इंतज़ार के दौरान ही तो हमें उम्मीद की ज़रूरत होती है। और आज इसीलिए हमारे साथ एक बहुत ख़ास दोस्त मौजूद है, एक ऐसे व्यक्ति जो सबको हंसाते हैं और हंसते हंसते लोगों को एक संदेश भी दे देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे इंसान जो दिल से बहुत अच्छे हैं, लाखों की तादाद में लोग उनको बेहद प्यार करते हैं। कभी वो अपने आप को भाई कहते हैं, कभी अपने आप को सख्त लौंडा कहते हैं। जी हाँ, उम्मीद पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है जाकिर खान, द किंग ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी इन द हिंदी सेक्टर. So I would like to request Zakir to kindly join us for the live session this evening. I'm going to try and get Zakir online as we wait for him to come. Please kindly be with us. Zakir, if you're here and if you could just kindly comment, we'll just ask you to join online right now for this live session. Zakir is such an incredible human being, I must tell you. I've had some real wonderful interactions with him, and it has been an absolutely amazing experience to talk to him, to chat with him, to interact with him. Zakir, if you're just in here, I'm just going to try to check you out again. And Zakir, okay. Just waiting for Zakir to join, guys. Just waiting that he comes online with us, and we will be with him very soon. Zakir, if you could just kindly join us and probably give a comment in the comment section, we can just connect to you right from there. You know, it'll be just easy to connect to you right from there. Technology, you know, guys, technology can always keep us waiting, but that's what it's all about. Patience, ummeed, patience, dheeraj, dhairya. We need to wait with patience. Okay, trying him again. Trying to connect to him. Just connecting, guys. Hold on a moment. Requesting Zakir Khan to kindly, if you could kindly comment here, Zakir, it will be very, very helpful so we can connect to you right from here. Yes, waiting. Okay. Yes, just waiting. Oh man, give me a moment, guys. Any good session, we need to wait patiently. Nature of life, isn't it?
that if you need to get something nice, you need to wait for it patiently. Somebody is asking me, गुरुजी आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है उम्मीद कैसे बनाए रखे इस इंतज़ार के दौरान में, कैसे होपफुल रहे, how to keep hope during hopeless times. And the fact of the matter is that all of us do go through hopeless times. And there's a great need for us to find that ray of hope. I remember this one beautiful story about a little boy who walked in yes, Zakir Khan is just trying to give me a moment, guys. I'm just going to connect to Zakir on WhatsApp and be back to you again. Just stay on tune. Yeah. He's joining us in 5 minutes. Yes, he's just getting ready and joining us in 5 minutes. But let us wait for him to come. So this little boy, he entered into a room and he saw that there were 4 candles lit up there. 4 मोमबत्तियां वहां जली हुई थी. As the boy came there, one of the candles started talking to the boy, said, I am love. And in today's world, nobody cares a damn for love. Everybody cares for money. Everybody cares for things. Everybody cares for popularity and fame. Nobody cares for me. Genuine, true love. And the candle went off. After that, the boy felt a little despondent. The candle called love is gone off. He turned to the other candle. The second candle spoke. He said, I am trust. And it's very difficult to find real trust in the world today. It's hard to trust a guy or a girl. It's sometimes even hard to trust close members of the family or friends. Often I say trust is like a chocolate bar. Once it melts, it's hard to get it back to the same shape again. The candle of trust spoke. आजकल मुझे किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है. Nobody cares for me and I don't have any value in this world today. Saying so, the second candle, trust, went off. The candle of love extinguished. The candle of trust extinguished and gone off. The boy turned to the third candle. This candle said, I am peace. But in the world today, who cares for peace? Everybody is simply moving towards gaining more, having more. Everybody is into the hustle. Everybody is into the grind. सब लोग केवल मेहनत करते रहते हैं, भागते रहते हैं. ऐसे सिचुएशन में मेरे किसी को जरूरत नहीं है शांति की, पीस की. And the third candle, peace, also went off. The boy started crying. The candle of love has gone off. The candle of trust has gone off. The candle of peace has gone off. And these 3 things are so crucial in life. No matter what we have in our life, how much money, how much facility, how much luxury we have in life, लेकिन ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है. एक, प्यार, love. दूसरा, विश्वास, trust. और तीसरा, शांति, peace. As the boy was crying, the 4th candle turned towards the boy and spoke up. Said, do not worry, dear. I have not gone up yet. My name is Hope. I am the candle of hope. As long as I am on, as long as my flame is still lit up, you don't have to worry. You don't have to give up. You don't have to feel despondent. You don't have to feel depressed. You don't have to feel dejected. Take me and light these other 3 candles of love, peace and trust. The boy picked up the candle of hope. बच्चे ने hope की, आशा की, उम्मीद की मोमबत्ती उठा ली और इन तीनों मोमबत्तियों को वो जलाने लगा. Soon the candle of love was lit up. प्यार की मोमबत्ती जल गई. And then the candle of trust lit up. विश्वास की भी मोमबत्ती जल गई. And then the candle of peace, he lit up the candle of peace with the candle of love. शांति की भी कैंडल, मोमबत्ती जल गई. Ladies and gentlemen, दोस्तों, isn't it amazing? जब तक हमारे लाइफ में होप की कैंडल है ना, बाकी सब बुझ भी जाएंगे ना, फिर से जला सकते हैं. Until the time we have the candle of hope with us, we will be able to light up any other candle in life that may
get extinguished, that may be blown off, that may turn off. And which is why hope against hope, आशा, उम्मीद बनाए रखना, बरकरार रखना कितना ज़रूरी है. How important it is for all of us to keep that candle of hope burning. So here we have Zakir Khan with us, and I'm going to request Zakir Khan joining us in a moment. Shukriya, Zakir. अरे क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. क्या भूल गए क्या? 5 बजे सो गए. अरे बाप रे. Thank you very much, Zakir, for joining this evening. I am so sorry. My whole universe is right now calling me. People have come to my door. You have too many fans. No. I don't think I have fans, Zakir. Everybody is your fan, man. The Sakht Londa. The bhai. अरे कहाँ. I have learned so much from you and the calmness and the schedule you follow. I hope someday कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँ. वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा. आधी नींद में, आधी आँखें खुली. I remember day before yesterday when we were talking. तो Yes. आपका कुछ 5:30-6 बजे मैसेज आया. हाँ जी, बिल्कुल. 5:30 बजे रिप्लाई किया सुबह. जी. तो आपका वापस से मैसेज आया कि हे गुड मॉर्निंग, इट्स अ ग्रेट डे. तो मैंने उधर से मैसेज लिखा. मैंने कहा भाई आप ही के लिए गुड मॉर्निंग है, मेरे लिए तो गुड नाइट अब होगी. और सवेरे मैंने 5:30 बजे लिख दिया. मैं कंफ्यूज हो गया. अभी आपको ग्रीट क्या करूं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड डे. तो हाँ, वो हमारा बड़ा हम पोल्स अपार्ट. तो मेरे ख्याल से ये जो टाइम है ये हमारा बेस्ट टाइम है. जी. Thank you a worldly so person much. like me and a monk like you can only meet at 5 p.m. But such a pleasure to have you, Zakir. Very, very grateful. बहुत धन्यवाद. शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया. यहाँ हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी के सारे व्यूअर्स को एक उम्मीद देने के लिए थैंक यू वेरी मच. So let's start the conversation. माजरत चाहूंगा देने के लिए, और पर बहुत सारा प्यार आपके लिए. और सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. जी, कैसे हैं आप, बताइए ना थोड़ा. बस ठीक. आपका दिन कैसा है? बस दिन तो चलता रहता है. दिन में सारे स्केड्यूल में अभी अपनी हेल्थ पर, अपनी फिजिकल फिटनेस पर, रीडिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इस समय पर. एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ द लॉकडाउन टाइम. सो यस, ट्राइंग टू टेक द डे अहेड. सो जाकिर, एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, है ना जी. आपको खुदा ने ऐसा हुनर बख्शा है ना कि आप जैसे मुंह खोल देते हैं, आपका मुंह खुले और ऑडियंस में सब हिले. पेट पकड़ के हिलते हैं सब, नहीं सब हंसने लगते हैं. और ऐसे हंसाते हंसाते कई बार आप एक बहुत गहरी बात भी बता देते हैं. एक संदेश दे देते हैं, कोई मैसेज दे देते हैं. चाहे वो कक्षा 11वीं हो, चाहे वो हक से सिंगल हो, चाहे वो चाचा विधायक हो हमारे हो, चाहे वो तथास्तु हो, कोई भी आपका शो हो, उसमें से आप ना एक हंसाते हंसाते लोगों को खूब हंसाते हैं और उसमें एक मार्मिक बात भी कई बार कह देते हैं. तो जानना चाह रहे थे कि क्या आप बचपन से ऐसे थे, क्या बचपन से बातूने थे, क्या बचपन से हंसते हंसाते थे, या फिर क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स था जिसका इन्फ्लुएंस आप पर था, या क्या आपकी खुद की एक खोज थी. कैसे हुआ शुरू ये सफर, कैसे था ये सब, कैसे शुरू हुआ ये सफर? पहली बात तो बेहद शुक्रिया. बहुत सारा प्यार आपको. इतना आप रेफर कर पा रहे हैं कक्षा 11वीं, हक से सिंगल और तथास्तु आपने लाइव देखा हुआ है जी. तो इसकी जो हमें थोड़ा पीछे से अगर हम जाएंगे तो मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का लड़का रहा. अच्छा. कम बात करने वाला. और एक हमारी बातचीत में एक बार मैंने एक राइटर का जिक्र किया था, डॉक्टर राही मासूम रजा जी. तो उनकी किताब में एक उन्होंने जिक्र किसी शख्स को लेकर ये जिक्र किया था कि उनकी शख्सियत ऐसी कि अगर वो महफिल से उठ के चले जाएं तो किसी को मालूम न चले कि महफिल से कोई गया है. ठीक है जी. he leaves the party, nobody would ever realize that he left. So quiet. So yes. One of those people. Okay. तो
I remember I used to play cricket for the district. और फोर्थ या फिफ्थ में क्लास टीम जब बनी तो मैं क्लास टीम में नाम मेरा नहीं लिखा बिकॉज दे थॉट दे कुड इग्नोर मी. जी जी जी. स्पोर्ट्स टीचर इंटरवीन किया रहे लिखो भाई ना नाम लिखो ऐसे थोड़ी. That happens in a lot of cases. So sixth के बाद I was in sixth standard. During that vacation, sixth or seventh के बीच की vacation, I saw this film called छोटी सी बात अमोल पालेकर साहब की. वो थी उसमें मुझे शायद ऋषिकेश दा की फिल्म है या नहीं है मुझे याद नहीं exactly. पर उसमें अमोल पालेकर एक्टर थे and it was about personality. Correct. It was about how he pursues his love, interest and all. And I realized when I looked at that picture movie, I realized कि यार ये लड़का मैं हूँ जिसको बात करनी नहीं आती, जिसको फिजिकल मैनरिज्म नहीं आते. और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी लाइफ के सेकंड हाफ में कोई अशोक कुमार नहीं आएगा शायद, तो मेरे को अपना अशोक कुमार बनना पड़ेगा. जी जी. तो वो एपिफेनी होती है ना, वो एक वो पेनी ड्रॉप मोमेंट होता है, वो मेरे साथ हुआ. करेक्ट. ये तो मैं हूँ, ये तो अब मतलब कि इफ दिस इज व्हाट माय चाइल्डहुड इज, जी, दिस इज हाउ माय एडल्ट लाइफ इज गोइंग टू बी, व्हिच इज नॉट कूल. आई डोंट लाइक इट. तो गलती से उस वक्त मेरे पास कुछ 8-9 मतलब पुरानी रखी हुई और 3 मैंने नई रद्दी वाले से जो अपनी किताबें मैंने दी, तो उसके बदले मैंने उससे जोक्स की किताबें ले ली. क्या बात. तो मैंने वो पढ़ना शुरू करी है. 7th में जब हम शुरुआत में गए तो मैंने, और इतनी सारी जोक्स की किताबें मैंने पढ़ी ना सर, कि मेरे को ना जोक को फॉर्मेट आ गया कि 1 to flip क्या होता है. You say this, then you say this, then you say this, then you say 1 to flip. तो जब स्कूल शुरू हुआ तो मैंने पहली बार जब जोक सुनाया तो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इतना ज्यादा लोग एक साथ आए, इतना लोगों ने तारीफ करी, अप्रिशिएट किया ह्यूमर को. फिर क्या हुआ कि क्योंकि मुझे 1 to flip समझ में आ गया, मुझे जोक का फॉर्मेट समझ में आ गया कि जोक बनता कैसे. तो जब लोगों ने मुझे कुछ कहा तो मैंने पलट के जो जवाब दी वो इतने सेलिब्रेट किए गए, तो मुझे लग गया कि हाँ, ह्यूमर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर वंस पर्सनालिटी. करेक्ट. And once I realized it, and once I thought that I had little grip on it, I never let it go. तो मुझसे ना अक्सर, क्योंकि मैं हिंदी में कॉमेडी करता हूँ, तो मुझे लोग जब कॉमेडी रेफर करते हैं ना तो बड़ा कि वो वैसे वेस्ट में ना एक्चुअली वहाँ इम्प्रोव इज अ फॉर्म ऑफ जोक, ये ना कि कई बार लोग मुझे डार्क जोक समझाने की कोशिश करते हैं, सी इन डार्क कॉमेडी व्हाट इट इज. मैं मेरे मन में बोलता हूँ कि मुझे मत सिखाओ कॉमेडी, क्योंकि तुम फनी हो, मैंने सीखा है, मेरे को उसका मैथ आता है. तुम फनी हो, मैंने सीखा है. वाओ. सीखा है. तो मेरे को like when I see a naturally funny guy, I am not afraid of him. Correct. Because what I know about being funny and being about comedy timing, he will never realize it. Correct. Because I have learned it. He might have earned it by birth, but I have learned it. Yes. Wow. He earned it and you learned it. Wow. Yeah. Wow, that's amazing. वो वाला जोक याद है क्या? पहली बार जो जोक सुनाया था वो याद है? फर्स्ट वाला स्कूल में. उतना क्लियरली याद नहीं है, वो बड़े वो चाइल्डिश जोक्स होते हैं ना वो, और वो जोक की किताब में बड़े हस्बैंड वाइफ वाले जोक्स होते हैं. जी जी. तो जो मुझे थोड़ा सा जो मुझे इनिशियल जोक याद है वो ये कि एक डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट जाता है और उसको बोलता है कि बोले कि मैं जब भी चाय या दूध पीता हूँ तो मेरी आंख में बहुत दर्द करता है. तो डॉक्टर बोलता है कि मेरे सामने पी के दिखाओ. तो सामने पीता है तो बोले डॉक्टर साहब दवाइयाँ, बोले कोई दवाई नहीं है, आप बस अगली बार जब चाय पियो तो चम्मच निकाल देना. Now this guy is so stupid. One of the cheesy jokes. हाँ, one of those easy. Yeah, but that time it was funny. True. That time it was very extremely funny. Absolutely. Absolutely. Like, wow. Absolutely. Yeah, Zakir, I totally believe in this as well. Humor is such a powerful tool, you know. Humor is so powerful because it kind of gives you an entry into people's heart. Laughing is the way to enter into people's heart. Like मैं भी बहुत सीरियस था पहले, जब मैं प्रवचन देता था, लेक्चर देता था, बहुत से लोग डरते थे, कांपते थे मेरे सामने, क्योंकि सच्चाई ना कड़वी होती है और सच्चाई सर्जरी करने के समान होती है ना. जब आप सच बोलते हो तो सामने वाले आदमी को काट रहे हो, क्योंकि इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग, राइट, द ट्रूथ. लेकिन ह्यूमर ना एनेस्थीसिया का काम करता है. लेकिन ह्यूमर एनेस्थीसिया का काम करता है. तो थोड़ा जैसे सच बोलना है, पहले एक एनेस्थीसिया लगा दो, फिर थोड़ा काट दो, फिर जैसे एनेस्थीसिया उतर एक और जोक बोल दिया, एक और कुछ फनी बोल दिया, फिर सच्चाई बोल दी. ये आर्ट मैंने भी अपने सफर में सीखा.
सर्जरी तो ऐसे हाँ, पेनफुल होती है ना, एक डॉक्टर एक बार सर्जरी कर रहा था एक पेशेंट पर। पर मैंने देखा कि आपके टॉक्स में, आपके प्रवचन में ह्यूमर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट Yes, it is. It ओवरऑल. is. Absolutely. Absolutely. Because I believe in it. It's my anesthesia before I do the surgery. कहा ना सर्जरी है भैया, सच बोलना। एक बार एक सर्जन पेशेंट पर ऑपरेशन कर रहा था और हाथ में फूलों की माला लेकर खड़ा था, स्कैल्पेल नहीं। हाँ. तो पेशेंट ने पूछा, डॉक्टर साहब ये माला किस लिए है? हम्म. तो डॉक्टर ने कहा, अगर सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो मेरे लिए, नहीं तो तेरे लिए। वाह But वाह. Zakir, thank you very much for those amazing points. Some things are earned, but some things are learned. All of you who are watching, please take this message home. Some things can be learned, but some things can be earned at birth, but some things can be learned. Here's a gentleman who was shy. Here's a gentleman who was introvert. Here's a gentleman who did not think he could come out and speak like this. That one penny drop moment, that one movie by Amol Palekar turned his life. Is there a moment for you? Think about it, guys. Think about it. Is there something that you can learn? Is there something that you can pick up? Is there something that you can start on your journey? Something for you to ponder over for this evening as I get back to my next question with Zakir. Zakir, 12वीं में आप, I think you were in 12th. I don't know when you started stand-up comedy in 2012 or so, 2012 में, 2011 में, right? 11-12 में। और आपका कॉलेज था, कॉलेज आपने कॉलेज को जो भी डिग्री ले ली और आगे एक जॉब करके, जॉब छोड़ के आप स्टैंड अप कॉमेडी में घुस गए। तब तो स्टैंड अप कॉमेडी का सीन जो था आज के जैसा तो नहीं था। आज तो स्टैंड अप कॉमेडी इज अ बिग थिंग, राइट? You can get a lot of popularity, you can get a lot of money, you can get a lot of followers, fans, fan following in today's stand-up comedy scene. But otherwise, stand-up comedy scene में generally तभी के समय में आसान नहीं था। अपना पैशन था आपका कि ये करूं, लेकिन पैशन ज्यादा से ज्यादा फैशन था तभी, राइट? पैशन डजंट पे द पैशन, तभी बिल्स तो नहीं भर सकता था तब के समय में, है ना? और हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है हमें कि आज की तारीख में ना कुछ भी बिक जाता है, पैशन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कचरा भी बेच देते हैं लोग तो आजकल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल. हरिवंश राय जी ने एक बार कहा था, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभाल कर। जी, यहाँ सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभाल कर, बेचने वाले तो हवा भी बेच देते हैं गुब्बारे में डालकर। वाह वाह, क्या बात। यहाँ सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। यहाँ सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, तीनों लोगों में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में भर के पानी, है ना? तो आप देखिए ना, आज की तारीख में तो गुब्बारे में हवा बिकती है और पानी की बोतलों में पानी बिकता है, जब नल से पानी आता है। तो आज कुछ भी बिक जाता है साहब। लेकिन आपके समय जब आपने आपकी जर्नी शुरू की, तब तो ये स्टैंड अप कॉमेडी को बेचना और स्टैंड अप कॉमेडी के शो फुल हाउसफुल करना सरल नहीं था। तो मेरा आपसे सवाल है कि इस जर्नी में क्या हुआ, कैसे ये जर्नी आपने, पैशन कैसे फॉलो किया, सपोर्ट मिला फ्रेंड्स का, फैमिली का? मुझे तो लगता है कि थोड़ा ऑपोजिशन ही हुआ होगा, क्योंकि तब तो स्टैंड अप कॉमेडी कोई प्रोफेशन भी नहीं था। तो आई वुड लाइक टू नो हाउ डिड यू, बिकॉज देयर आर मेनी यंगस्टर्स हियर, दे वुड लाइक टू नो हाउ टू फॉलो देयर पैशन। इसमें दो तीन मौलिक जवाब, बेसिक जो बातें हैं जो मैं क्लियर कर दूं कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है, मैं कैसे फंक्शन करता हूँ। जी। एक चीज जो मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ लगती है वो ये है कि one should always have an earning hobby. Correct. और कॉमेडी भी एज एन अर्निंग हॉबी ही था मेरे लिए, ठीक है? क्योंकि उससे इतर एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी ये बात आगे बढ़ाने की वजह, बहुत सारे लोगों से जब मैं बोलता हूँ ना कि यार मेल जोल बढ़ाइए, जी, आपके काम में मदद मिलेगी, है ना? तो लोग ना बड़ी बेसिक गलती करते हैं, वो ये है कि वो एक बार किसी पार्टी में जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं बिल्कुल निराश होके कि अरे यार हम आ गए, वहां पे कुछ काम ही नहीं हुआ। एक ही बार में निराश हो गए। हाँ, एक ही बार में निराश हुआ, एक ही बार में जी पीआर जैसे जो बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, है ना, पर्सनल रिलेशन बनाना, है ना, जिसका प्रोफेशनल रिलेशंस में भी काम जो आ सके, वो एक बार में नहीं बनते, सालों साल मेहनत है। यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। बिल्कुल। तो हर तरह की चीज में जब आप उस तरह से अपने आप को बिना रिटर्न के जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना,
तब उसका फल बहुत बेहतर आता है। हम्म स्टैंड अप कॉमेडी भी वाज आल्सो वन ऑफ दोस थिंग्स कि मैं जब जिस दिन स्टेज पे चढ़ा तो मैंने ये नहीं कहा कि यार इससे आज मैं जाऊंगा तो कितने पैसे बनेंगे, नहीं, इट वाज जस्ट अ थिंग, आई वाज एंजॉयिंग इट। और मेरा ये करेक्ट। मानना है कि वन शुड ऑलवेज हैव अ अर्निंग हॉबी रिगार्डलेस टू व्हाट यू डू। आप दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस भी अगर आप करते हैं ना, और आप साइड में पेंटिंग करते हैं, तो प्लीज वो पेंटिंग चाहे 500 रुपए में बिकती है, आप करिए बेचिए। जी। क्योंकि उससे क्या होता है, ये तो मुझे नौकरी में समझ में कि हम ना अमेरिकन सिस्टम ऑफ वर्किंग में ऑपरेट करते हैं, जिसके अंदर हम जी कंटिन्यूअसली नंबर्स से इंसान को रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करते हैं हाँ कि इन दिस क्वार्टर इफ यू डोंट मेक दिस अमाउंट ऑफ नंबर्स देन यू योर वर्थ इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड। करेक्ट। तो आपके काम में, आपकी जॉब में, आपके ऑफिस में कभी भी आपको दुनिया में कोई भी कॉर्नर नहीं कर सकता, अगेंस्ट द वॉल पुश नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास हमेशा एक एस्केप रूट रहेगा। और वो माशाल्लाह से मेरी जिंदगी में बचपन से रहा, क्योंकि मैं आता हूँ फ्रॉम द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। तो करेक्ट जब मैं स्कूल में भी था तो मुझे कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं लगा, क्योंकि मुझे जी पूरा लगता था कि यार मैं सितार तो बजाता ही हूँ ना। हाँ बिल्कुल और मेरे बिल्कुल वालिद साहब ने, जब मैं, तो क्या हुआ कि मैं सितार म्यूजिक टीचर बन सकता हूँ, सितार बजाता हूँ, वो सब छोड़ के मैं दिल्ली आया, कॉलेज छोड़ के मैं जी दिल्ली आया, जी सितार बजाना छोड़ के मैं जब मैं दिल्ली आया, तो ना जी बड़ा कॉमनर वाली फीलिंग आने लगी मुझे, हेल्पलेसनेस सी फीलिंग लगी कि यार हर चीज ना बड़ी स्टेक हाई हो गया हर चीज की, बिल्कुल कि ये नहीं, नौकरी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो क्या होगा, बुरा नहीं गया तो क्या होगा। जबकि स्कूल में कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि यार मैथ्स में नंबर नहीं आया तो क्या होगा, जी या इस क्लास जी में नंबर नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि एक जी बैकअप सा रहता है ना दिमाग में। आप परफॉर्म जी भी बेटर करते हो अगर आपका बैकअप रहता है। जैसे कि जी मैं मेरे भाई से आज सुबह से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं हमेशा हर बात में बोल रहा हूँ कि उसको और मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क है, कि मैं बहुत ऐसे कैलकुलेट कर करके मैंने कदम उठाए जिंदगी भर, जी और उसने बड़े कॉन्फिडेंस से उठाए, क्योंकि हम्म उसके बैक ऑफ द माइंड में वो है ना कि भाई है। हम्म तो करेक्ट उसकी 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हैं बाय दिस कॉन्फिडेंस दैट भाई है। यस यस उसी तरह से जब आपका लाइफ में, करियर में एक बैकअप होगा ना, तो आपके मेन हम्म काम में भी अपने आप चीजें ऐसे रिजॉल्व होती जाएंगी, क्योंकि आपको क्या मालूम बात है कि मैं कुछ और कर लूंगा। So क्या that बात resolution, that comfort was provided to me while I was working in my job अमेजिंग by stand-up comedy. I started it purely as the people meeting Excel. करेक्ट हमें 2009 में पता चला कि दिल्ली में स्टैंड अप कॉमेडी होती है। और आपसे मैंने काफी बात हुई है, लोगों को मालूम नहीं है, हम इसके बाद बात करेंगे हम कैसे मिले। जी जी जरूर तो 2009 में घर से बोल दिया है कि हमारी दिल्ली में नौकरी लगी हुई है, और मैं और विश्वास, मैंने आपको पहले मेंशन किया, मेरे दोस्त होते हैं, साथ जी रहते हैं, विश्वास और मैं, हम ढूंढ रहे कि हमको किसी ने बता दिया कि स्टैंड अप कॉमेडी होती है, पर वहां पे सिर्फ 500 रुपए की फीस है, और 500 रुपए नहीं है हमारे पास वो फीस देने के, एंट्री फीस बिल्कुल है। So 2011 April I got my first job, and I waited till December to have those extra 500 rupees so that I could go and participate in one of the open mics in वाओ Delhi. तो वाओ मेरे ख्याल से वो 6 महीने जो है वो इंतजार जो रहा, उससे भी काफी बिल्डअप हुआ, एग्जैक्टली अंदाजा हुआ कैसा करना कैसा नहीं करना। जी पर हाँ, अगर आप वो वाली बात है कि मांगने जाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा, जी पर जी अगर आप ईमानदारी से बस परस्यू करेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। तो मेरे को पहला शो मुझे मार्च में पहला शो मिला, वाओ 22 मार्च को मैंने पहली बार जो है पेड शो किया, उसमें मुझे 2,500 रुपए मिले। And I think that वाओ was a big amount back then. Extra, करेक्ट apart from your salary, someone giving you यस यस 2,500 rupees was श्योर such a big amount. And I was like, what? करेक्ट This is happening through comedy? और वहां से मैंने उसको बराबर परस्यू करना शुरू किया। और ये बात जी है ना कि मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि हमें नौकरी छोड़नी है, हम क्या करें, सब। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आर्ट फॉर्म पे बोझ मत बनिए आप। आपका काम आपको बताएगा कि कब वो फुल टाइम होना चाहता है। जी जी तो अमेजिंग मुझे 2011 मैंने शुरू किया, 12, 13, 14, 15 अप्रैल तक मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, जबकि आई वाज अ ठीक ठाक डिसेंटली अर्निंग कॉमेडियन। 2015 when I thought that comedy can give me that kind of comfort that I can live my own, या I can live my life on my own, तो मैंने नौकरी छोड़ी और वो amazing amazing guys, please take a note of what Zakir has said. It is an amazing answer, this ideology that we have to have an earning hobby. उससे confidence आएगी and we'll be able to focus on our work better, just like his brother has the confidence because he has him. There is somebody to rely on. तो आपकी एक job चल रही है and there's a earning hobby which can pay you, and he began with 2,500 rupees for the first show.
And from April until December, he didn't have 500 rupees to go and attend a stand-up comedy show. You can imagine. And today people are paying massive amounts to go and watch Zakir Khan crack them up, guys. Literally crack them up. I've seen him in action. He can literally crack you up, to the gut. Trust me. बट ये बहुत अच्छी चीज बोली जाकिर आपने कि आप ना अपने पैशन को फॉलो कीजिए साइड बाय साइड एक अर्निंग हॉबी करके, और डू नॉट क्विट योर जॉब अंटिल द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर. ये जो आजकल के सारे लौंडे हैं ना, सब छोड़ छाड़ के अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं. दुनिया में इतनी कंपटीशन है, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी वेल मछलियां घूम रही है, और इनको लगता है बस यूं चुटकी बजाने से ये लोग ऊपर पहुंच जाएंगे. ये एक बड़ी हस्ती हमारे साथ है, एक बड़ी सेलिब्रिटी हमारे साथ है, जो हमारे सारे नौजवानों को ये बोल रही है कि आप अपनी नौकरी, अपना मेन स्ट्रीम करियर जारी रखिए, और साथ साथ जो करना चाहते हैं पैशन, उसको अपनी अर्निंग हॉबी बनाइए. एंड जब टाइम आएगा तब उसको क्विट कीजिएगा, है ना. इसलिए हम कई बार कहते हैं ये बात. हाँ क्या जी जी आप कह रहे थे? हाँ जी आई वेरी ऑफ्टन से हम कई बार कहते हैं मंजिल जरूर मिलेगी भटककर ही सही. मंजिल जरूर मिलेगी भटककर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप गुमराह नहीं बने. जब आप घर से बाहर निकलोगे अपनी पैशन फॉलो करने के लिए, तो थोड़े भटकोगे, थोड़ी ठोकर जरूर खाओगे, लेकिन एक साथ एक सोर्स रखना, अर्निंग सोर्स, और अपनी पैशन को भी फॉलो करना. Zakir, just one request, you may have to speak a little louder. Lot of comments where people are not able to hear you. Just a little louder. हाँ जी. अब अभी तीसरा, हाँ मुझे तो आ रही है, बाकी लोग भी थोड़ा कमेंट करें आपको आवाज आ रही है कि नहीं. So my third question to you, Zakir, is this. कि जब मैं एनसीपी आए थे, हम एनसीपी आपके तथास्तु देखने आए थे, वो 25 साल में पहली बार किसी थिएटर में कुछ शो देखने गए थे हम. अच्छा, अरे वाह. In 25 years, for the first time I went to theater to attend a stand-up comedy, a monk like me. मतलब वहां जो लोग थे, उनके लिए दो प्रॉब्लम्स थी. एक तो ये यहाँ क्या कर रहा है, और दूसरा कि लोग हमें भी तो जान रहे थे वहां. So it was a little troublesome there to go in the middle of all of that crowd. I still went to NCPA, and that I only went because I connected to Zakir so closely in our very first meeting. Such an amazing human being, I must tell you. I just felt that connection instantly. Malab, instant connect. There was no second thoughts. And he said, Swamiji, Guruji, मेरा एक शो हो रहा है नवंबर में NCPA में, तथास्तु है, वो आपके लेवल का भी रहेगा, दादाजी की हमारी कहानियां और लाइफ है, तो आप आएंगे क्या? तो हमने कहा जरूर आएंगे. बट जब हम गए ना, तब जाकिर के लिए जो लोगों की दीवानगी है, ये दिखाई पड़ी. People were just absolutely stunningly mad and crazy. As soon as this guy comes up on stage, people like Zakir, cheering. Like the whole auditorium was filled up with only Zakir. And I'm like, my God, I've never heard anybody cheer for someone with so much love. मतलब वो केवल आवाज नहीं थी, उसमें प्यार था, And then I see he comes up on stage, चौके छक्के लगाया जा रहा है ये बंदा. People are clapping every 2 minutes, 3 minutes, cracking up. और लड़कियां तो ज्यादा ही चीयर कर रही थी कुछ. बंदियों के तो दिल में बैठ गया ये. So there was so much going on there. और मैंने ना जाकिर आप में एक बहुत स्पेशल क्वालिटी देखी, सादगी, सिंप्लिसिटी और विनम्रता, मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी. आज भी अगर आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी, मैंने स्टोरी डाली थी इस कॉन्वर्सेशन की, और जाकिर ने रिपोस्ट की वो स्टोरी. और जब रिपोस्ट की तो आप कुछ देखना चाहिए था उसने क्या लिखा. जाकिर रोट कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि गुरुजी ने मुझे चुना. भैया मैं कौन हूं इसको चुनने वाले? वो व्यक्ति जिनको लाखों की तादाद में लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिनके लोग दीवाने हैं, जिनके 5 मिलियन से ज्यादा YouTube सब्सक्राइबर्स है, Amazon प्राइम पे शोज है, 15-15, 20-20 लाइव शोज जो महीने में करते हैं, इनको चुनने वाले हम कौन हैं? That goes to show the humility of this man. Grounded.
I want to add something. प्लीज I want to add something. I Please. think जब हमने इतनी बात कर ली है एनसीपी की, तो हमें वो भी बात करनी चाहिए कि हम मिले कैसे. ठीक है. जी जी बोल दीजिए, अब आगे तो- पूछने वाले थे लेकिन अभी बोल ही दीजिए। मतलब मैं बताता हूँ कि तो जी। जो मेरी सीट पे, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई भी ऐसा है जो आपको नहीं पहचानता होगा. माशाल्लाह से आपकी जो है आपकी ख्याति जो है वो चहु दिशाओं में चहुमुखी है. ठीक है. बहुत अरे लोग भैया। पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं. तो मैं पहली बार जब आपसे मिला, तो हम फ्लाइट में आ रहे थे मेरे ख्याल से कहीं से. एक तो इतना ट्रैवल करते हैं आप और मैं, हम दोनों माशाल्लाह. दोनों जी ये जी, एक जी। अकेली ऐसी चीज है जिसमें आप और मैं एक साथ आ सकते हैं. जी कि जब साहब हम दोनों ट्रैवल बहुत करते हैं, लाइफस्टाइल. बिल्कुल। वरना आप 5 बजे उठने वालों में से और मैं 5 बजे. तो हम दोनों ही जो है ट्रैवल माशाल्लाह से बहुत करते हैं. तो मेरे को जो जी। मेरे को याद आ रहा है कि मैं और आप बगल बगल में बैठे थे. बिल्कुल। है ना. और मैं इंदौर आपको से आ रहे थे। इतना अवाक रह गया, इतना अवाक जी। रह गया. और उस तो बिजनेस क्लास में कुछ 6 या 8 सीट होती हैं और जी। सारी जो है आपके फैंस ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, ना इस उम्मीद में कि वो फ्लाइट के दौरान आपसे बात करेंगे. गलती से मेरी सीट आ गई आपके बगल में. ठीक है. तो मैं बहुत ऑन में आ गया. तो मैंने आपसे धीरे सी, थोड़ा सा जब सेटल हुआ फ्लाइट में, तो मैंने कहा कि गुरुजी हेलो, आई रियली लाइक द वे यू स्पीक एंड मैं आपको सुनता हूँ ऐसे Zakir, little louder, people are saying little louder. हाँ, Yeah? ठीक है. तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं सुनता हूँ आपको और मुझे बेहद पसंद है आप जैसे बात करते हैं. तो आपने कहा रही एंड यू वर सो वार्म एंड आपको वो आपका जो तरीका है, क्योंकि मेरे लिए इतना चिर परिचित था क्योंकि मैंने सुना हुआ था, मैं आपको बात करते हुए सुना है. Suddenly you turn towards me and you like, oh, thank you very much, gentleman. मैं कहा, yeah. What do you do? Now, this is a very tricky question. Sorry. Now, as comedians, we know a lot of people don't like. So we are very skeptical whether to tell you or not to tell you. और मेरे को ये तो बहुत clearly मुझे मालूम था कि आप नहीं जानते मुझे. और माशाल्लाह दुनिया में मतलब कि अल्लाह करे कि मतलब वो सीन से बाहर हूं ना मैं, इसलिए. जी 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 जी. तो मैंने आपसे कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ. तो आपने बोला कि ओह व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्ट यू आर. मैंने कहा कि एक्चुअली मैं राइटर हूँ. तो आपने वहां पे गिव अप नहीं किया. You went for it. You were like, what kind of writer you are, gentleman? And I'm like, और क्या यूजुअली ये एज कॉमेडियन में आप ऐसे डॉज कर देते हो कि राइटर हूँ बोला तो लोग इतना डिग नहीं करते. लाइक हाँ जी जी जी. I just miscalculated the person I was talking to. You know people's soul. Why would you not ask? No. तो मैंने कहा कि actually I am a stand-up comedian, है ना. And then we started talking. I don't want to say what you told me about other comedians. Yeah. मैं वो सवाल पूछूंगा जी. एक सवाल तो पूछना जरूर है. जी. तो मुझे और उस दौरान क्या हुआ फ्लाइट में कि क्योंकि मैं आप और मैं हमारा कॉन्वर्सेशन एकदम हिट कर गया ना जी. 1.5 घंटे की फ्लाइट थी हमारी बातचीत. एकदम हमें मजा आ गया. मुझे बिल्कुल एकदम मजा एकदम. पर मैंने एक चीज नोटिस करी, आपके आसपास के जितने लोग थे जी, जितने लोग बाकी के जो आपके साथ के थे जो आपसे बात करने के आइडिया से बिजनेस फ्लाइट में बैठे थे जी, वो सारे लोग जो है वो मुझे इतनी उनकी नजरें चुभ रही थी मुझे, क्योंकि they thought कि they will sit next to you and they will talk. Now you are indulging in conversation with me, so that time is getting wasted. Oh dude, when we were getting off the flight, they gave me such dirty looks. No. You wasted Guruji's 1.5 hours. No. That could have been useful to us. No man, no, not at all. I think I'm glad you sat next to me. Glad. It was the beginning of a most meaningful and amazing friendship, I must tell you, Zakir. Thank you for that friendship. But my question to you is this: इतनी दीवानगी में ना ये सब पागल जैसे लोग पीछे पड़े रहते हैं, सक्सेस ना दिमाग में घुस जाता है. सक्सेस से ज्यादा चढ़ने वाली शराब कोई नहीं है. वाह, है ना? सही बात. कोई भी दूसरी शराब है ना पी के उतर जाएगी.
ये नशा चढ़ जाती है ना जी, तो वो उतरती बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल। लोग ना सच्चाई नहीं देख पाते फिर। लेकिन हाँ, आपको ना मैंने बहुत हम्बल और एक सादगी वाला इंसान देखा है, तो पूछना चाहता हूँ कैसे मेंटेन करते हैं आप इतनी पागलपन में, जो दीवाने हैं लोग, कैसे अपने आप को हम्बल बनाए रखते हैं? इसमें तो एक तो ये सवाल गलत है आपका, मैं ये गुस्ताखी करना चाहूंगा कि आप नहीं पूछोगे ये सब, ठीक है? नहीं नहीं जिसके लिए लोग लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े रहते हैं, और मैंने वो फैंडम आपका देखा है कि आपको नहीं लगता है नहीं कितने नहीं जी, पागल है लोग, है ना? जी नहीं जी नहीं। पर क्योंकि रिवायत है और आपने पूछा है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। तो मुझे पूरे मिला के ये बात समझ आई है, और मेरे वालिद साहब, मेरे दादा उस्ताद मोहन खां साहब, आपने तथास्तु देखा है तो, है ना? जी जी और जो जी परवरिश से जो मैंने सीखा है वो ये है कि आप किसी भी तरह के नंबर जी, को चेज नहीं कर सकते, वो गलत रेस है। बिल्कुल कि आप अगर अपने आप बिल्कुल। को ये वाला टारगेट देंगे ना कि यार कि मैं तो साहब, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कहा कि मेरे जब 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पे, दैट इज सक्सेस। अब 5 हम्म, मिलियन तो हो गए, अभी क्या काम नहीं करना है क्या? जी जी है ना? काम करना तो रहता ही है। तो इसलिए मैं जी, आई नेवर गो फॉर नंबर्स, आई गो फॉर फीलिंग। करेक्ट। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बारे में ये कहे कि जाकिर खान इज द इंडियाज नंबर 1 कॉमेडियन और टॉप कॉमेडियन और बेस्ट कॉमेडियन। जी, I want people to remember me like Zakir Khan is India's most loved comedian. वाह वाह, तो मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा जी प्यार चाहिए, जी, क्योंकि लोग कम ज्यादा हो सकते हैं, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर बिल्कुल, प्यार जो ऐसी चीज है वो इतनी खूबसूरत चीज है कि वो हर साल, हर दिन, हर लम्हा, हर मोमेंट जी वो बढ़ता जाता है। जी तो जी, मैं मुझे गणित नहीं चाहिए, मुझे एहसास चाहिए। तो एक तो बात ये, दूसरा मैंने अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचा है माशाल्लाह से। अपने बारे में बुरा सोचने में कोई पुलिस थोड़ी पकड़ रही है ना? बिल्कुल। तौबा तौबा। ठीक है। तो मेरा रास्ता बहुत लंबा है, बहुत दूर जाना है मुझे। तो उसके बीच में जो कुछ भी छोटा छोटा होता रहता है जी, वो बहुत मैं उससे सेलिब्रेट करता हूँ। छोटी छोटी खुशियां बहुत सेलिब्रेट करता, पर मैं रुक के कुछ बड़ा सेलिब्रेट नहीं करता। वर्ल्ड कप थोड़ी जीता है कोई, और वर्ल्ड कप जीतती है तो फिर कल के क्रिकेट नहीं खेलना है क्या? जी तो जी, वैसा है, तो मैं जब कुछ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होता है, तो मैं बस अपने सोचे वैसे से मैच कर लेता हूँ एक मोमेंट लेके, और मैं हाँ हम्म कहता हूँ कि हाँ सेम है, बहुत अच्छा लगा, हम्म, चल चल आग आग। तो आई थिंक ये अमीन, 3 चीजें हैं जिनसे बहुत मदद मिलती है। दूसरा मुझे एक बात ये भी कहनी है कि मेरे दोस्त, उसके लिए मेरे दोस्त और मेरे परिवार को मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि वो लोग मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। उससे भी थोड़ा सा माहौल जो है वो सेटल रहता है। उन लोग बिल्कुल। जो है वो बिल्कुल, मेरे वालिद साहब ने अभी अभी मुझे थोड़े दिनों पहले कहा था, उन्होंने घर आए वो, और उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा जो है लोग आ रहे जा रहे हैं, ज्यादा तारीफ हाँ करके जा रहे हैं, तो वो मूड ऑफ हाँ, रहने लगे। जी, चिड़चिड़े वो हो गए दूसरे तीसरे दिन। तो मैं समझ गया इनके मन में कोई बात है जो ये कहना चाहते हैं, उसके बाद ये फारिग हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा क्यों, आप कुछ कहना है क्या आपको? तो बोला नहीं, बस ऐसे ही हम देख रहे हैं और क्या। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम? बोले नहीं, हम देखते हैं सब लोग आके तुमको कहते रहते हैं इतना तुम्हारा नाम हो गया, इतना तुम्हारा नाम हो गया। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है यार, बहुत लोगों का नाम होता है, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो हम पे। हम्म, मैंने कहा व्हाट, कि क्या? खेल लगे कि उन्होंने मतलब पूरा पूरा जो हमारा जो जो पैरामीटर है सक्सेस और जी फेलियर का, जी, उन्होंने वो पूरा डिस कर दिया मेरे मुंह पे। डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश कर दिया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत लोगों का नाम होता है। जी 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 तो जी, यही है मेरे ख्याल से, ये सब कुछ मिला अमेजिंग के जो है मुझे जमीन पे रखता है। अमेजिंग। I think very amazing answers, guys. Please take note of these incredible replies and inputs given by Zakir. I trust and I completely believe in what he said. Let's not be numbers oriented. Let's be love oriented. Numbers will come. We are not chasing numbers. We work for numbers, right? But we should be chasing love. He said, I don't want to be the best comedian in the country. I want to be the most loved comedian in the country. And best will happen. Best will happen. Best 5 will मिलियन happen. से 10 मिलियन हो जाएंगे, you know. बट 10 मिलियन के लिए काम नहीं कर रहे। आई ऑलवेज से डू नॉट वर्क फॉर एन अपलॉज, वर्क फॉर ए कॉज, यू नो। डू वाह नॉट वर्क, वाह डू वाह नॉट वर्क टू इम्प्रेस, work to express yourself. When you work to वाह वाह। express, you'll automatically impress. When you work for a cause, you'll automatically get an applause.
सो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, वेरी वेरी नाइस, दैट बी फोकस्ड ऑन बीइंग लव्ड बाय पीपल. सेकेंडली, टेक प्लेजर एंड सेलिब्रेट द सिंपल मोमेंट्स. केवल बड़ी चीजों में जॉय मत ढूंढिए कि जब वर्ल्ड कप आ जाएगा उसके बाद क्या, इतने फॉलोअर्स आ जाएंगे इसके बाद क्या, 10 डिजिट की सैलरी आ गई उसके बाद क्या. वी हैव टू टेक प्लेजर इन दोस simple moments of life as well. And the third thing you said was also very nice and amazing, which is to be surrounded by people who treat us the same as they treated us before. हमारे सक्सेस से पहले जैसे उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया था वैसे ही बर्ताव करते रहे तो अपने आप हम्बल बन ही जाता है आदमी. और हमारे लिए भी ऐसे कुछ दोस्त है, हमारे यहाँ पे आश्रम में रहते हैं कुछ दोस्त है जिनके लिए हम वही है जो पहले थे, और बस वैसे ही है. उसमें क्या है, बस सिंपल सिंपल चीजों में हमारी भी जॉय ढूंढ लेते हैं, खुशी ढूंढ लेते हैं. एंड देयरफॉर सक्सेस इज इन टू थिंग्स गाइस. व्हेन यू हैव नथिंग टू बी डिटरमाइंड and when you have everything to be humble. And this man has showed both. When he had nothing, he was determined. That's what's brought him here today. And when he has everything today, trust me, I'm not just saying it to say it. I've felt that vibe every single time we've spoken or met. He's a genuinely humble, amazing person. So Zakir, thank you for that answer. Very, very grateful for sharing your thoughts with us. जी अभी जो फ्लाइट वाला सवाल है ना वो पूछने वाला हूँ. जी खतरनाक जी. सवाल अरे है भाई ये सवाल सब लोग जो गौर से सुनेगा. ये ना खतरनाक सवाल है. हम वहां आए, एनसीपीए में आए, और एनसीपीए हमको दिया 5वां रो. जाकिर ने 5वें रो पे बैठाया, और 5वें रो पे 5 सीटें रखी थी, दो बगल में, ताकि हम बीच में बैठे. उनको लगा कि हमारे साथ 4 लोग आएंगे, लेकिन हमको तो पता ही नहीं था, हम अकेले चले गए. ड्राइवर हमको छोड़ दिया, हमारा गाड़ी बाहर पार्क किया, हम आ गए अंदर, बैठ गए, और 4 सीट वो खाली थी बगल में, और 5वें रो पे सीट दी. और इनका सेक्रेटरी आकर कहता है जाकिर साहब ने कहा है कि ये यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा होगा. व्यू तो अच्छा था, लेकिन बाद में हमने सोचा ये 5वें रो पे सीट क्यों दी. तब समझ में आया. बाद में थोड़ा सोचा उसके बारे में, थोड़ा विचार किया, और फिर जो फ्लाइट पे जो सवाल पूछा था ना वो याद आया. फ्लाइट पे सवाल पूछा था हमने जाकिर भाई से कि भैया हमको भी हंसना पसंद है, हमको हंसाना भी पसंद है जी, और एक बात तो पक्की है, आई लव विट. कॉमेडी इज अबाउट विट, turning simple observations into hilariously bloody hilarious stuff, you know. I love it. तो मैंने इनसे पूछा भैया हर 2 सेकंड में गाली देने की जरूरत क्यों, गंदी गंदी गालियां. ये स्टैंड अप कॉमेडियन बता रहे हैं आपको, ऐसी गालियां देते रहते. आई लव दीज गाइज, आई कैन क्रैक अप, दे आर सो विटी. लेकिन मुझ जैसा शख्स बैठ के ये सुने हर 2 सेकंड में, अब तो मैं गालियां बोल भी नहीं सकता. क्या गालियां बोलते हैं ये गालियां बके जाते हैं. तो मैंने पूछा भाई ये स्टैंड अप कॉमेडियन गाली क्यों देते हैं. तो ये एक आंसर पूछेंगे, and then we'll end with our one word association, Zakir, because we only 7 minutes, 1 hour, and Instagram will stop us. So we have 7 minutes. So बताइए. हाँ जी जी जी. So क्यों गालियां, बताइए थोड़ा. आपने जो जवाब दिया हमको भी दीजिए, सारे हमारे दर्शकों को. तो वो मैं जिस बड़ी गुस्ताखी की मैंने जिस तरह का जवाब दिया, तो मेरा ये मानना है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी में जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं और जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो रिलेशन बड़ा अपने आप में यूनिक है. कि वो बाहर से देखने में बड़ा ऐसा लग सकता है कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों है. बिल्कुल बिल्कुल. वैसे एक आर्टिस्ट और उसके फॉलोअर के बीच का जो रिश्ता है ना, उसमें इतनी परवरिश है, उसमें इतना कॉमनैलिटी है कि आपको खुद नहीं मालूम कि वो क्यों बोल रहा है ऐसा, और इस बात पे वो लोग क्यों हंस रहे हैं. जी जी. तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सेक्रोसेंट है. वो आर्टिस्ट पर आर्टिस्ट वो उतना डिपेंड करता है. जी जी जी. मैं अपने शोज में आप भी आए, उतनी गालियां मतलब नहीं देते, क्या फर्क पड़ता है, पर उतनी नहीं देता है ना. तो पर उसका जो मुझे ये लगा कि कॉमेडी इज ऑल्सो एन इमोशन जी, और हर इमोशन की अपनी एक स्पेस है, हर आर्टिस्ट की वो अपनी एक स्पेस है जिसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे रहना चाहता है. और मुझे एक चीज जो कॉमेडी को लेकर लगती है, जो कॉमेडी के बारे में है, जो दो चार क्रिकेट के बारे में जो है ना, कि
कि सब लोग बता देते हैं कि ऐसा कॉमेडी होना चाहिए, वैसा कॉमेडी होना चाहिए। तो मैंने जो मेरा ये मानना है कि जैसे रोना एक इमोशन है, वैसे हंसना एक इमोशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि गुड़िया टूटने पर एक बच्ची रो रही है जी और एक शख्स है जिनकी माता का देहांत हो गया जी और वो रो रहा है। जी, बिल्कुल अलग है। तो गुड़िया टूटने वाली बच्ची को क्या आप चुप करा दोगे कि जी ये कोई रोना बिल्कुल थोड़ी हुआ? बिल्कुल रोना बिल्कुल। तो वो होता है जो भाई जी भागे मरने पे, जी ठीक है जी ना? वैसे ही हंसने वाली बात, अरे किसी को किस बात का हंसी आ रही है, हमें क्या ही पता। जी जी जी, क्या बात कही है। तो वो आर्टिस्ट और वो जो ऑडियंस पर्सनल कनेक्ट रिश्ता है वो बड़ा पर्सनल जी रिश्ता है वो, है ना? और दूसरा जी कॉमेडी का तो खैर लार्जर पॉइंट हो गया, पर जो आपके सवाल का असली जवाब है वो ये है कि कॉमेडी इन जनरल रिप्रेजेंट्स द नॉन फॉर्मलनेस। जी 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 तो जब हिंदुस्तान में दोबारा कॉमेडी हुई तो वो अंडरग्राउंड सीन की तरह शुरू हुई जी और वेस्ट से एप करके शुरू हुई। जी तो क्योंकि वहां पे उस तरह की फाउल लैंग्वेज लोग इस्तेमाल करते थे, जी तो यहाँ जी पे जी शुरुआती दौर में ना गालियों का इस्तेमाल एज पंचलाइन होने लगा क्योंकि स्किल बहुत कम था शुरू जी में हम लोग जी सबके पास कलेक्टिव। जी जी The better we learned, we realized that it can be like used at some places, but cannot be part of Correct. punchline. Which Correct. जिस वक्त को आप रेफर कर रहे थे, Correct. जब मेरे ख्याल से आपने शुरुआत में जो कॉमेडी शोज बिल्कुल बिल्कुल वो उनमें वो प्रॉब्लम थी जो आप आज मुझसे पूछ रहे हैं कि जी उस वक्त गालियां जो है पंचलाइन की तरह सर्व की जाती थी, है ना? जी और जी वो बहुत लोगों को टर्न ऑफ करती थी। तो हाँ वो हुआ, पर मेरे ख्याल से जो है अब वो केस नहीं है ना? जी जी कम से कम मैं अपने जी जी जरूर। मैं आई कैन वाउच, हाँ आई कैन वाउच फॉर जाकिर। आई वेंट फॉर द तथास्तु, और तथास्तु में बस मैंने गालियां कितनी दी थी गिन के रखी थी। मुझे 5वां रो इसलिए दिया, जानते हैं क्यों 5वां रो दिया? ताकि गाली देगा ना तो थोड़ा बुरा नहीं लगे कि सामने बैठे और उनके सामने गाली, इसलिए 5वें रो में बिठाया। जाकिर ने 5वें रो में बिठाया। और जब मैं ग्रीन रूम में मिलने गया ना, तब ग्रीन रूम में जाकिर मुझे बोलता है, गिनी ना स्वामी जी, 2 ही गालियां दी ना आज, इतना मासूमियत से बोल रहा है। मैंने कहा चुप। 2 गालियां काहे की, मैंने गिनी थी 7 दी, लेकिन 1 घंटे में 7 बहुत कम थी। But I definitely feel that comedians like Zakir and also Trevor Noah, and there are others, even someone in India like Amit Tandon, some of them बहुत कम फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, और इसीलिए सुनने में थोड़ा हमारे लिए भी पॉसिबल है। Zakir, we have only 3 minutes. My quick last one-word associations, Zakir. Yes. Ready? Okay. Yes. What do these things mean to you? Family. Family is life. Life. Comedy. Path. Success. Feeling. Feel. Money. Byproduct. Byproduct. Wow. Corona lockdown. Empathy and self-discovery. Empathy and self-discovery. Friends. Friends. That will be foul word for them. It's an English word which starts with B and ends with B. I won't ask you to utter it. Yeah. And religion. Personal. Very nice. Yeah. Wonderful. Personal. God. God. Belief. Spirituality. Way of life. Love. हक से. Marriage. Marriage. Companionship. Anyways, Zakir, we are running out of time, but बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज अपना इतना कीमती समय निकाला और हम सबको यहाँ, हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को एक उम्मीद दी, ऐसे जवाब दिए जिससे केवल एक हंसी नहीं थी, लेकिन उसमें से एक मैसेज था, एक संदेश था. आई एम श्योर सम ऑफ यू व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस हियर will take away something really valuable from Zakir. We will be posting the story on the live session on our story. Do watch it. If you want to take a screenshot, keep it, save it for the beautiful message that he has given. फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, and we'll catch up soon again. Thank you, Zakir. Have a great day. Thank you.
Thanks. Bye. Bye.